Good morning, everybody. Sorry for the late today. Good Good morning, morning, ma'am. everyone. Am I audible? Yes? Okay. So let me share my screen and we will start then. Just a minute. Huh? So today we are going to start with new chapter and that is risk management. See, this is our chapter risk management. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. See, now what do you mean by risk management? And now I hope you know in everything that we do, in every business, in every type of field, or in every type of job that we do, everywhere, whether we earn money, whether we go for studies, okay. So whether we do business, okay, whether I have a factory to produce goods. So in any type of what you say criteria field, we we have risk associated with that. Risk is associated with everything because nothing is permanent in this world. Everything will eventually come to an end. Therefore, now suppose you have taken a car, risk is attached to it. Suppose you have taken a house, risk is attached to that also. Okay, it may be burnt, it something may be lost. Okay, and if you have taken up a business, suppose you have purchased land and you are making a factory on that land, and you want to purchase plant and machineries, you want to produce goods and commodities. So in everything you do, risk is attached. Even the life, with the life of the person, the risk is attached because that person will go die. So one day the person will go die, and the family will face financial problems, no. Therefore, even if the life of the person is riskful, right? So in everything we do, risk is attached, risk is associated with those things, right? Therefore, how that this the concept of risk management is very important, that how we need to manage our risk, how we need to come out of the risk that we are facing. Okay, and always remember, risk is uncertain. It will never tell you, the situation will never inform you that yes, tomorrow the risk will be going to occur, right? It is uncertain. We don't know the date, time, and what type of situation will come, right? Therefore, it is very important to manage the risk. Now there are two different things because we are into banking and insurance. Therefore, see, in corporate companies also, there is a risk management concept. Everywhere we have a risk management concept. But now, in this chapter, we are going to focus only and only in two different fields, banking and insurance. Okay, so first part we will study about risk management in banks, and the second part we will study risk management in insurance. Okay, so what is importance of risk management? Why we need to manage the risk? Managing risk, I hope by now you have understood managing risk is so significant, so important in ensuring social, political, and economic development of the country. Otherwise, if you see, if you don't manage the risk is going to happen in the future, suppose. So social problems will incur, poverty, unemployment, and education problem. So every type of problem will occur in the future if you don't manage the risk. Political problems will be there, economic development will be hampered, right? So
Managing risk is very, very important in the country for its development. The importance of the risk management are for effective management of resources. Now you have limited resources, no? Our country has limited resources. Therefore, we need to have optimum utilization of those resources. Optimum means to the best possible level. ऑप्टिमम मीन्स जितना है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, कुछ भी वेस्टेज ना हो, उसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट, फॉर डेवलपिंग appropriate business policies and strategies, because now you know my risk is managed. So sometimes if risk is occurring, I will be getting funds back and therefore I will be able to run my business again. So for it helps to develop appropriate business policies, no? For evaluating and appropriating events that can have a bearing on operations of the business. Now sometimes some situation comes which have a direct impact on the operations of the business, like suppose if plant and machinery suddenly it goes wrong, like suddenly अभी अभी नया खरीदा था और अभी अभी खराब हो गया या जल गया या चोरी हो गया, तो उसका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. देखो, योर बिजनेस इज नॉट परचेज एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, but because you were having plant and machinery, you could produce things, you could produce goods, and after production you could sell it in the market and earn the profits. This is how your business was running, no? So because of one thing, that is lost of plant and machinery, maybe fire on the plant and machinery, your business has been stopped. So direct उसका business पे impact पड़ता है. कभी कभी कुछ events ऐसे हो जाते हैं, तो उसको भी क्या कह सकते हैं हम, that also can be managed through risk management. For qualitative and quantitative assessment of such risk. अब बहुत सारे रिस्क ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं. क्वालिटेटिव मीन्स cannot be measured in terms of, you can say, money, rupees, or in terms of number. हम ये नहीं बता सकते 20,000 का नुकसान हो गया, नहीं बता सकते. कभी कभी कोई रिस्क ऐसा होता है जिसको हम तोल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट मेजर दैट रिस्क. कभी कभी कुछ रिस्क ऐसा हो जाता है, कभी कुछ नुकसान ऐसा भी हो जाता है. तो वो क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बतानी पड़ती है कि इसकी क्वालिटी क्या थी. ठीक है, क्वालिटेटिव होता है. एंड सम रिस्क इज known as quantitative. Quantitative means that can be measured in terms of money and in numbers and in weight. जिसका हम वेट निकाल सकते हैं, 20,000 kgs का स्टॉक बर्न हो गया है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं. सो दैट इज क्वांटिटेटिव. ठीक है. अब क्वालिटेटिव में आप एग्जांपल ले लो, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का. ह्यूमन रिसोर्स मतलब मेरे इस अभी जैसे ये कोरोना वायरस का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, तो किसी कंपनी के समझो 10 एम्प्लॉयज थे. एग्जाम्पल ले लो, एक छोटी सी कंपनी जिसके 10 एम्प्लॉयज थे, 4 एम्प्लॉयज को कोरोना की वजह से डेथ हो गया. अब मेरे वो 4 एम्प्लॉयज थे ना, वो मेरी कंपनी के एक्सपर्ट्स थे, बिल्कुल एक्सपर्ट्स. वो मेरी कंपनी को चला रहे थे, ऐसे समझिए, वो 4 एम्प्लॉयज. ठीक है. अब वो मेरे एक्सपर्ट्स चले गए. अब मैं किसी इंसान को मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ी मेजर कर सकती हूँ कि ये इंसान की वैल्यू थी 2 करोड़ रुपए, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं. बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना. अब वो मेरे एक्सपर्ट्स चले गए, वो दूसरे एक्सपर्ट्स को ढूंढना पड़ेगा ना मुझे. तो ये मेरा रिस्क, मेरा नुकसान हो गया, क्वालिटेटिव रिस्क. ठीक है ना. तो उसके लिए भी टॉप मैनेजमेंट को कुछ इफेक्टिव डिसीजंस लेने होते हैं सो दैट बिजनेस का ग्रोथ ना रुके. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू फॉलोइंग मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, वेरी गुड. See, for developing plans and procedures to minimize uh, uh, for developing plans and procedures to minimize, handle and manage such risk, हम लोग को ऐसे plans and procedures ऐसे वे में बनाकर रखने, डेवलप करके रखने, सो दैट उसमें ना रिस्क खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाए, हैंडल हो जाए. जब टाइम पे रिस्क होगा ना तो वो हैंडल हो जाए. अभी इसका एग्जांपल देखो, हर कंपनी के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर ना आपके पास वो होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर.
मतलब अगर गलती से कहीं फायर लग भी गई तो आपके पास हर जगह 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 पर फ्रीक्वेंट प्लेसेस पर नज़दीक नज़दीक में 2-2 किलोमीटर पे या 1-1 किलोमीटर के पास आपने फायर एक्सटिंग्विशर की मशीन रखी हुई है। तो जब फायर लग जाएगी तो आप उसे यूज कर सकते हैं ना, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। आपने रखा इतनी बड़ी कंपनी और आपने एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा होगा तो उससे क्या भी हो जाएगा, राइट? सो आपको प्लान्स एंड प्रोसीजर्स ऐसे बनाकर रखने हैं सो दैट कभी अगर कुछ अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क हो भी गया तो दैट we can handle it carefully, we can manage it, we can minimize the risk and ensure that smooth functioning of the business। मतलब अपने बिजनेस को हम स्मूथली आगे चला सकें। और एक इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? फॉर अवॉइडिंग कॉस्ट, मतलब अपने खर्चे बचाने के लिए। क्योंकि देखो बहुत बार है ना, जब हम रिस्क को मैनेज करते हैं तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी देखो फायर एक्सटिंग्विशर भी खरीदना तो उसका तो कॉस्ट भरना है ना मुझे, तो इतना भी ज्यादा खर्चा नहीं करना है कि रिस्क और कॉस्ट मैच होने लगे। मतलब नुकसान भी हो गया और मेरे खर्चे भी बढ़ गए पहले की। ठीक है ना, नुकसान को मैनेज करने का खर्चा भी थोड़ा उतना होना चाहिए जितना हम बेयर कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं कि ज्यादा लॉसेस में चले गए। फॉर अवॉइडिंग कॉस्ट डिसरप्शंस एंड इनएफिशिएंसीज देयरबाय एंश्योरिंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ। मतलब ऐसे इतनी आपको कॉस्ट उतनी रखनी है, उतना आपको संभाल कर चलना है कि आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो, मिनिमाइज नहीं होनी चाहिए। So what were these points? These points were related to importance of risk management. Very important, हाँ? जो हम कर रहे हैं ना क्लास में, आप सब उसको पढ़ेंगे, ठीक है? सब इम्पोर्टेंट है वो। टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सिंपल है ये तो। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट के टाइप्स क्या हैं। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को बाइफरकेट किया है इनटू टू पार्ट्स, financial and non-financial। Financial means that can be measured in terms of money, and non-financial means that cannot be measured in terms of money। डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली हाँ, इनडायरेक्टली हम उसको फंड्स में मेजर कर सकते पर डायरेक्टली नहीं। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे financial risk की, so that is also divided into two parts, credit and market risk। क्रेडिट रिस्क मीन्स आप जब भी किसी पर्सन को क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचते हो ना, कि गुड्स आज लेकर जाइए, पैसा आप 1 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट में दे देना, ऐसा बोलते हो ना आप। जब भी कोई बिजनेसमैन ऐसे करता है ना, आजकल तो सबका बिजनेस क्रेडिट पे ही चलता है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरर है, so we have a wholesaler as a customer, so wholesaler is buying a lot, okay, buying lot of commodities in a bulk। So how does he do the payment? He does the payment in the installments, okay, at a certain future date। Certain future dates are fixed। Suppose हर एक महीने में इंस्टॉलमेंट पे करते जाइए, ऐसा 3 महीने तक। तो आपने उनको क्रेडिट पीरियड दे दिया ना। अब क्योंकि क्रेडिट पीरियड दे दिया तो डाउट भी तो है, पता नहीं पे करेगा नहीं करेगा, पता नहीं, डाउट है कितना पे करेगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा मेरा। देखो ऑन द स्पॉट पैसे मिल जाए तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन लेकिन जब आपको पता है फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं, तो अगर फ्यूचर में वो बैंकरप्ट हो गया, फ्यूचर में वो कहीं भाग गया तो पैसा लेके, सो दीज आर क्रेडिट रिस्क। वी हैव अ मार्केट रिस्क ऑल्सो। आपको पता है मार्केट हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है, तो मार्केट के हिसाब से जो आपके कमोडिटीज के ऊपर रिस्क आता है। और नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी होता है। नॉन फाइनेंशियल मीन्स कुछ लीगल पॉलिटिकल रिस्क भी होते हैं। अभी देखो पॉलिटिकल मीन्स जैसे पार्टी चेंज हो गई बीजेपी से, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। अभी जैसे पहले कोई और था, अब बीजेपी आ गया, Yes, तो ma'am. रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए। बीजेपी पार्टी ने फाइनेंशियल सिस्टम के रूल्स चेंज कर दिए, बैंक के रूल्स चेंज कर दिए अपने हिसाब से, इकोनॉमी में थोड़े चेंजेस लाए, डिमोनेटाइजेशन लाया। अब पहले बीजेपी नहीं था जब, तो डिमोनेटाइजेशन नहीं लाया था, बीजेपी आया थोड़े 2-3 साल पहले अपना डिमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना, हुआ था ना, आपको याद होगा, याद है ना सबको। तो Yes. उसकी वजह से भी Yes, तो हमारी ma'am. इकोनॉमी पे हैम्पर हुआ था ना, तो ये भी तो रिस्क Yes, था मेरे बिजनेस के लिए। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं।
लेट अस सी वन बाय वन, थोड़ा क्विकली करेंगे क्योंकि बहुत इजी है। देखो, अब डायरेक्ट लैंड जो क्रेडिट रिस्क होता है ना, क्रेडिट रिस्क उसके ना कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स मतलब तरीके, कुछ टाइप्स होते हैं। डायरेक्ट लेंडिंग, अगर आप किसी को लोन देते हो, लोन, अभी समझो आप किसी को लोन देते हो, तो लोन भी तो धीरे धीरे मिलता है ना, एक साथ थोड़ी ना मिलता है आपको। उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, फिर उसका इंटरेस्ट भी होता है। अगर वो नहीं मिला तो मेरा नुकसान। सो दैट इज अ रिस्क रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क। रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट मतलब पैसा आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, और आपने सामने वाले को बेनिफिट आज दिए, गुड्स आज बेचे, लोन आज दिए, फंड्स आज दिए, लेकिन आपको मिलेगा ना वो फ्यूचर में, तो फिर नुकसान भी तो हो सकता है ना। गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, अब आप किसी के लिए ना गारंटर बन के खड़े रहते हैं। बैंक क्या होती है? बैंक स्टैंड्स एज अ गारंटर बिटवीन टू पार्टीज। आई होप यू नो दिस। Yes, ma'am. हाँ, तो बैंक, सपोज सपोज आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं इंपोर्ट करना चाहती हूँ, हम दूसरी दो दो अलग अलग कंट्रीज में, एंड यू डोंट ट्रस्ट मी, आई डोंट ट्रस्ट यू, तो बैंक विल स्टैंड एज अ गारंटर ना, मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगी। जब तक मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं करती है एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्ट नहीं करेगा वो। समझ आ रही है बात? तो Yes, इसमें भी तो ma'am. लॉस है ना, अगर इंपोर्टर ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो बैंक को उठानी पड़ती है ना पूरा, बैंक को उठाना पड़ता है इंपोर्टर का पूरा बर्डन, कि अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पे नहीं करेगा टाइम से तो बैंक बैठी है ना। सो बैंक विल बी देयर टू सफर द लॉसेस, राइट? मतलब वो अपना लॉस होने नहीं देती है, बट स्टिल है तो कॉन्टिजेंसी तो है ना, लॉस तो है ना, कभी भी रिस्क हो सकता है। ट्रेजरी ऑपरेशंस, ट्रेजरी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब आज मैंने ये काउंटर पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट लिया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में बंद हो गया, कुछ हो गया ऐसा, तो फिर मेरा नुकसान हो सकता है ना। ठीक है, उसे कहते हैं ट्रेजरी ऑपरेशंस। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस, क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला एग्जाम्पल, या आपने ना फॉरेन करेंसी के एग्जाम्पल्स ले लो, आपने यूएस डॉलर्स में डील करना है, आपने यूरोज में डील करना है, तो अगर कुछ उसके ट्रांजैक्शन की वजह से नुकसान हो गया तो वो भी मतलब बैंक के थ्रू ही करते हैं ना, ये तो आपको पता होगा। क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर भी फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो बैंकिंग की मदद से ही हम कर सकते हैं। सो दीज आर क्रेडिट रिस्क। अभी आते हैं मार्केट रिस्क पे। आपको पता होना चाहिए मार्केट रिस्क क्या होता है। मार्केट रिस्क मीन्स, जिसको हम लिक्विडिटी रिस्क भी बोलते हैं। मार्केट रिस्क का मतलब होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब होता है डायरेक्ट आपके कैश पे फर्क पड़ता है, कैश मतलब कैश का नुकसान होता है, आपकी जो इनकम है ना, कैश इनकम, उसका नुकसान होता है। तो जब हम कैश का नुकसान होता है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं है लिक्विड पानी, नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब शॉर्टेज ऑफ कैश नहीं होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश, कि अगर फ्यूचर में कोई, किसी के पास अगर मुझे एक्सपेंस करना पड़ा, कुछ परचेज करना पड़ा, तो मेरे पास सफिशिएंट कैश पड़ी है बिजनेस में। कभी कभी बिजनेस में देखो शॉर्टेज हो जाती कैश की, कुछ खरीदने हैं पर मेरे पास कैश नहीं, उसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। और अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है, आप जब चाहे खर्चा कर सकते हैं जिस चीज़ के ऊपर चाहे बिजनेस में, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टेज ऑफ कैश नहीं है, दैट इज नोन एज लिक्विडिटी। अच्छा, अगर रिस्क उसके साथ मैंने जोड़ दिया, लिक्विडिटी रिस्क मीन शॉर्टेज ऑफ कैश, आपके पास उतने फंड्स हैं ही नहीं कि आप लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीद सको, इन्वेस्टमेंट कर सको, प्रॉफिट्स अर्न कर सको। ठीक है, आपको कैश चाहिए ना बिजनेस चलाने के लिए, तो ठीक है ना। तो चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, अभी देखो, आपको पता होना चाहिए मार्केट रिस्क के टाइप्स होते हैं। देखो, ऊपर दिए हुए हैं, नीचे क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन दी है मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत इजी है। देखो, इंटरेस्ट रेट रिस्क, अब आपको पता है मार्केट में ना इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते हैं, इंटरेस्ट के रेट्स होते हैं ना, फ्लक्चुएट होते हैं, किसी भी इंटरेस्ट रेट ले लो, फॉरेन फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट होता है। वी हैव बैंकिंग एडवांसेस रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, मतलब आपने अगर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया तो टाइम टू टाइम है ना रेट्स चेंज होते हैं। देखो, सेविंग अकाउंट के भी रेट्स चेंज होते हैं, जो इंटरेस्ट के रेट्स होते हैं, मतलब आप जहाँ से इंटरेस्ट अर्न करते हैं ना, वो मार्केटिंग में प्रिवेलिंग रेट्स होते हैं, 5%, 6%, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब
क्योंकि वो चेंज हो रहा है तो रिस्क भी तो हो सकता है ना, मतलब अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट, कम होगा तो नुकसान। सो दैट इज टाइप ऑफ रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मैंने अभी अभी आपको बताया, कैश से फंड से रिलेटेड। एक्सचेंज रिस्क मतलब फॉरेन एक्सचेंज, जब आप फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हो, सपोज आपने रुपीज के फॉर्म में डॉलर खरीदा रुपीज के अगेंस्ट में, सो आपने सोचा था जब बढ़ेगा तब बेचेंगे प्रॉफिट होगा, पर नुकसान हो गया क्योंकि डॉलर का रेट कम हो गया। बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बता रही हूँ? कभी कभी हम सोचते बढ़ेगा पर बढ़ा नहीं, नुकसान हो गया। एक्सचेंज रिस्क उसे कहते हैं। हेजिंग रिस्क, हेजिंग आपको पता होना चाहिए स्पेकुलेशन से रिलेटेड होता है, डेरिवेटिव्स का ये पार्ट होता है। अभी इसको हम डिटेल में तो नहीं बता सकती हूँ मैं आपको, लेकिन हाँ इतना बता सकती हूँ, ये स्पेकुलेशन रिस्क होता है। मतलब एक चीज़ के बजाय अगर आप दूसरी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो और पता चला वो दूसरी चीज़ का रेट कम हो गया, तो आपका लॉस हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, स्पेकुलेशन रिस्क होता है, ये स्पेकुलेटर होता है एक, वो रिस्क बियर करना पड़ता है उसको अगर मार्केट में उसका एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। अब होता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल में देखो मैंने आपको पहले से एक दो पॉइंट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, पॉलिटिकल लीगल। पॉलिटिकल मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, उसने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दिए, तो बिजनेस के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, एंड देयरफॉर रिस्क अकर्स। लीगल रिस्क, लीगल मीन्स अभी सपोज किसी कंपनी ने आपकी कंपनी के ऊपर कोर्ट केस कर दिया। अब कोर्ट केस के खर्चे करो, लॉयर अपॉइंट करो, कोर्ट केस लड़ो, एंड देन इफ यू विन देन ओके, इफ यू डोंट विन द केस देन आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो उसके ऊपर भी तो बिजनेस का इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो उसे कहते हैं लीगल रिस्क। ठीक है। फंडिंग रिस्क, फंडिंग रिस्क मतलब फंड से रिलेटेड, मतलब कैपिटल से रिलेटेड। अगर आपका कैपिटल का नुकसान हो गया, आपने गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट था वो चला ही नहीं, जो प्रोडक्ट आपने इन्वेंट किया मैन्युफैक्चर किया वो चला ही नहीं, तो आपके फंड्स का नुकसान। फंडिंग, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी, फंडिंग की थी। फंडिंग मीन जहाँ पैसे लगाए थे, इन्वेस्टमेंट करी थी, वहां से नुकसान हो गया। स्ट्रैटेजिक रिस्क, स्ट्रैटेजिक मतलब आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी, आपने कंपनी की एक स्कीम बनाई थी, सपोज तीन चार स्कीम्स बनाई थी, आउट ऑफ दैट वन स्कीम फेल्ड, तो उस एक स्कीम की वजह से जो आपको नुकसान हो गया ना, उसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्क। मतलब कोई स्ट्रैटेजी बनाई आपने, स्कीम बनाई और वो सक्सेसफुल नहीं गई। होता है बहुत बार ऐसा, हम बहुत बार ऐसी कोई स्कीम बना देते हैं बिजनेस में, हमको लगता है बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, पर नहीं होता ऐसा, और फिर मेरा नुकसान हो जाता है वो स्कीम के चक्कर में। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल मीन्स बिजनेस, बिजनेस के जो रूटीन बिजनेस होता है ना, रूटीन बिजनेस डे टू डे, ऑपरेशनल मतलब डे टू डे, ऑपरेशनल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अब डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस में इतना खर्चे बढ़ गए, इतने खर्चे बढ़ गए कि मेरा नुकसान हो गया, उसी कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। मतलब ऑपरेशनल रिस्क तब होता है जब इनकम्स कम और एक्सपेंसेस ज्यादा होने लगे, तो नुकसान हो जाता है, उसे ही तो कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। और किसे कहते हैं? देखो, अब क्रेडिट रिस्क में टाइप्स नहीं देखे ना हमने, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा। बोरोवर्स रिस्क, बोरोवर्स मतलब जब आप किसी को लोन देते हो तो आप सामने वाला बोरोवर हो जाता है ना, आपको टाइम पे पेमेंट नहीं देता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट, तो उसे कहते हैं बोरोवर रिस्क, कि मेरा बोरोवर मुझे टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है। इंडस्ट्री रिस्क, इंडस्ट्री में आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे, उतने गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो आपका रिस्क नुकसान, क्योंकि आप जितने गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए उतने प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे, तो जित प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही है तो सेल्स भी ज्यादा नहीं हो रही है, बिकॉज सेल्स इज नॉट दैट मच, प्रॉफिट इज नॉट दैट मच, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, इसीलिए इसीलिए रिस्क अकर्स। ठीक है, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री रिस्क। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो मीन्स आप जब सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, अलग अलग सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जब आप ऐसे अलग अलग जगहों पे अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो कभी कभी कहीं से नुकसान हो जाता है, कहीं कहीं किसी किसी सिक्योरिटी, कोई कोई सिक्योरिटी है ना आपको
प्रॉफिट अर्न करके नहीं देती है, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, समझ में आया? बस इसी को ही एक्सप्लेन किया। ये सब अभी जो हमने पढ़ा ना, स्ट्रैटेजिक रिस्क, फंडिंग रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, लीगल रिस्क, ये सब वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. समझ तो आ रहा है ना? आर वी गोइंग फास्ट? हाँ, No, फास्ट ma'am. तो नहीं जा रहे ना? No, ma'am. ओके ओके। एनीवेज, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि कुछ नहीं समझ आ रहा है, सो यू गाइस कैन स्टॉप मी एंड आस्क योर डाउट, है ना? ठीक है ना? सो नेक्स्ट Okay, ma'am. पॉइंट इज, जस्ट अ मिनट। सो अगर मैंने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ रिस्क इंश्योरेंस इन सॉरी टाइप्स ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस सेक्टर शुरू किया ना, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, इट इज लिटिल लेंथी। तो हमारे टाइम के हिसाब से वी हैव अनदर टॉपिक, I mean, sorry, another content which is related to your method of handling risk. अभी देखो, इसी में ही ना हमारे पास एक और चीज़ है जिसे कहते हैं मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क। अभी जो हम रिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको मैनेज करना कैसे, उसके मेथड्स होते हैं उसको हैंडल करने के लिए। देयर आर 5 मेथड्स। फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क। बहुत ईजी है, आप देखो, जब आप नाम पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रिवेंशन मीन्स, जब देखो प्रिवेंशन क्या होती है, प्रिवेंशन का मतलब ही होता है क्योर करना। मतलब पहले से ही आप प्रिकॉशंस ले रहे हो, पहले से ही क्योर कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, आपने 1 किलोमीटर में अपनी कंपनी में 1 किलोमीटर नहीं बोलना चाहिए, 1 मीटर में आपने थोड़ी थोड़ी गैप में आपने वो फायर ब्रिगेड की मशीन्स रखी हुई है। वेरी गुड, मतलब छोटी, वो फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसे। ठीक है ना? तो वो एक एग्जाम्पल हो गया प्रिवेंशन का। ठीक है, रिडक्शन ऑफ रिस्क। अब आप हो तो गया नुकसान, अब आप उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। शिफ्ट ऑफ रिस्क, मतलब किसी और के नाम पे आप ट्रांसफर कर देते हो रिस्क। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जब जब आपको क्लेम सेटल करके देती है, इट इज नथिंग बट शिफ्ट ऑफ रिस्क। शिफ्टिंग ऑफ रिस्क मतलब आप जब जब आप इंश्योरेंस ले लेते हो तो शिफ्ट कर देते हो ना रिस्क की। अब मैंने अकेले नहीं बेयर करना है, इंश्योरेंस कंपनी भी बेयर करेगी मेरे साथ। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको आप एक्सेप्ट ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते उसको। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, स्प्रेडिंग मीन स्प्रेड हो गया वो रिस्क, मतलब किसी और ने भी आपको उसमें शेयर दिया। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। प्रिवेंशन और अवॉइडिंग ऑफ द रिस्क। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपको प्रॉवर्ब पता है। दैट मीन्स टू एलिमिनेट और द कॉजेज ऑफ द रिस्क को आप प्रिवेंट कर देते हो। मतलब आपको पता है कि ये प्लेस ऐसी है जहाँ पे फायर लगने के चांसेस है, तो आप पहले से उसको फायर एक्सटिंग्विशर से प्रोटेक्ट कर लो। ऐसे डिजाइन करो सो दैट इट इज दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया इज प्रोटेक्टेड, बिकॉज आपको पता है उसका कॉज क्या है, उसका 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 जो मेन रीजन है एक्सपोज होने का रिस्क में, उसका मेन रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? उसे कहते हैं प्रिवेंशन रिस्क। पेज कैसे है तुम्हारे? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका प्रिवेंशन के बाद क्या आता है? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ रिस्क। रिडक्शन मीन्स मेनी रिस्क आर नीदर ट्रांसफरेबल नॉर अवॉइडेबल। कुछ भी नहीं कर सकते, हो गया, अब नुकसान होना ही है, अवॉइड नहीं कर सकते हम उसे। ठीक है, तो अब आप उसको उसको मिनिमाइज तो कम कर सकते हो, कम तो कर सकते हैं, है ना? कम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल ले लो, चलो रिडक्शन ऑफ रिस्क का एक एग्जाम्पल ले लो। अभी फैशन, फैशन तो आपको पता है, देखो एवरी डे चेंज होता है, एवरी ईयर फैशन चेंज होता है, एवरी मंथ फैशन चेंज होता है। अब आपने बिजनेस में ना कुछ ऐसी चीजें बना दी थी, ड्रेस मटेरियल ऐसा बना दिया था जिसका फैशन था, आज तो था लेकिन 3 महीने के बाद उसका फैशन चला गया। तो देखो, अब तो आपने प्रोडक्ट बना लिया ना, बन तो गया, अब आप उसको क्या कर सकते हो, बेचने के लिए डिस्काउंट लगा सकते हैं, थोड़ा कम पे बेच सकते हैं। तो थोड़ा तो नुकसान होगा, लेकिन लेकिन कम होगा। नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा। देयर विल बी डेफिनेटली लॉस, बट इट विल बी डेफिनेटली आई मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस। तो वो तो बेटर है ना, सारा लॉस हो जाने से अच्छा तो ये बेटर है कि आप थोड़ा सा नुकसान बियर कर लो। जहाँ 50 रुपए का नुकसान होना है वहां 20 रुपए का नुकसान बियर कर लो, बट एटलीस्ट 30 रुपीज तो आप उसमें से रिकवर कर पा रहे हैं ना। सो दैट इज नोन एज रिडक्शन ऑफ रिस्क।
मतलब ऐसी ऐसी स्कीम्स निकालो सो दैट आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, डिस्काउंट स्कीम्स एक्सेट्रा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, शिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ द रिस्क। अब जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ रिस्क ही तो होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम के नाम पे पॉलिसी ले बेचती है, आपको प्रीमियम लेती है, पॉलिसी बेचती है। जब नुकसान होता है तब आप वो पॉलिसी पेपर कंपनी के पास लेकर आते हैं और कंपनी आपको भरपाई करके देती है। तो ये क्या होता है, ये वही तो है ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क। ट्रांसफरिंग मीन्स टेकिंग इंश्योरेंस। आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। आपने मेराइन इंश्योरेंस ले लिया, फायर इंश्योरेंस ले लिया, किसी भी तरीके का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले लिया, तो जब देखो नुकसान तो मेरा हुआ ना एक्सीडेंट में, बट उसकी भरपाई कौन करेगा, कंपनी। तो ये ट्रांसफर ही तो हुआ, मैंने शिफ्ट कर दिया अपना नुकसान, किसी और के सर पे शिफ्ट कर दिया। उसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द इंश्योरेंस, सॉरी, शिफ्टिंग ऑफ द रिस्क या फिर ट्रांसफरिंग ऑफ द रिस्क। नेक्स्ट एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क। अभी देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं रिस्क के जो हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं और अनअवॉइडेबल होते हैं, कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे हम कहते हैं ना, कैन नॉट बी अवॉइडेड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करनी ही पड़ती हैं। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, प्री मैच्योर डेथ हो गई किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, या किसी किसी का ना हमारी फैमिली में एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो गया, डिसेबल हो गया वो पर्सन, अब वो अर्न नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये चीजें ना हम अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उसका, कुछ भी नहीं कर सकते। अब डेथ हो गई तो कुछ कर थोड़ी पाएंगे, है ना। हाँ, लेकिन उस रिस्क को हम थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आप पॉलिसी लेकर, कौन सी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कंपनी के नाम दिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, किससे खरीद सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। ये मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ हैंडलिंग रिस्क। उसमें फिफ्थ है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। स्प्रेडिंग इज द टर्म विच इज नोन एज एवरेजिंग। एवरेज मतलब एटलीस्ट थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। हम दो जन मिलके, देखो जहाँ दो जन होते हैं तो शेयर क्लियर हो जाता है ना, शेयर थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। अब आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो 4 फ्रेंड्स मिलकर जाएंगे तो थोड़ा शेयर कम आएगा, 8 फ्रेंड्स जाएंगे तो थोड़ा शेयर और कम हो जाएगा एक एक का। सो दैट वे averaging. Averaging of risk means this involves the combination of risk of many individuals who band together. एक कंपनी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, अब वो बहुत सारे लोग एक साथ आकर फंड्स जमा करते हैं कंपनी में प्रीमियम के नाम पे, तो इसे स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क ही तो बोलते हैं कि किसी का नुकसान हो गया तो अब उन्हीं फंड में से कंपनी आपको पे करती है, उसे कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, मतलब एवरेजिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। Is it clear, everybody? Yes, ma'am. These are the methods, yes? सबको clear है? Clear, Yes, everybody? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.